The only thing which mattered was the vision. सेकेंड टर्निंग पॉइंट तब आया जब सौरभ बंसल सर से उनकी मुलाकात हुई. This is really great moment in our company. Came and we met, the founders of Adda 24/7. सबको समझ में आ गया बोलो. And आज के टाइम में टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, सबको ही पता है. इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रैंकर्स अवार्ड एंड ट्रस्ट मी यार बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अमन सर ने जो है सारे बच्चों को गाइडेंस दिया. And it was amazing to be here. Thank you so much. Event is really great and really awesome. And it was very amazing event I've ever attended. And today I'm here for the felicitation ceremony by Ekagrata team. We learned a lot of things. Anshu sir says, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे. And mind blowing session हुआ है. एकाग्रता न भूतो न भविष्यति. Alright, so anyway everybody, let me very quickly introduce myself. My name is Udisha and today I am going to be your host and दोस्त. सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं a beautiful journey of Adda 24/7. कुछ साल पहले दो लोगों ने मिलकर एक ऐसा दीपक जलाने की कोशिश की जो भारत के हर घर में शिक्षा का प्रकाश फैला सके. आज से 15 साल पहले अड्डा 24/7 की नींव अनिल नागर और सौरभ बंसल सर ने रखी, एक ऐसे सपने के साथ जो हर विद्यार्थी को उसकी मंजिल सरकारी नौकरी तक पहुंचाने का था. लेकिन ये सफर आसान नहीं था. हर कदम पर नई चुनौतियां थी, मुश्किलें बड़ी थी, पर हौसला उससे भी बड़ा था. अड्डा 24/7 ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज ये भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है. अब तक 500 से अधिक परीक्षाओं में 2.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए अड्डा 24/7 ने उनके सरकारी नौकरी के सपने को हकीकत में बदला है. दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में YouTube और मोबाइल ऐप के माध्यम से अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहा है. हमारा लक्ष्य है कि भारत के हर छात्र तक तकनीक के जरिए सफलता का प्रकाश पहुंचे. इस शानदार सफलता के बाद अब हम एकाग्रता सीए टीम के साथ मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सपने को भी साकार बनाने के लिए तैयार हैं. जैसा हमने हमेशा कहा है, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे. अब यहाँ पर क्योंकि हमने ये जर्नी देखी है, एक ब्रीफ एफर्ट था ये कि हम आपको बता सकें what we've gone through, what we've probably achieved and everything that came on its way. So now I'm going to invite both our founders here with us and one by one we will try and have a conversation with them and listen to their part of the story कि आखिर यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक कंपनी बनाने के लिए, हर घर में क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना हम कैसे करते हैं. So I would request both my founders to kindly join us here with all our students. Everybody, please give a huge round of applause. तो सबसे पहले, ladies and gentlemen, get ready to meet a true game changer in education.
our CEO and founder, Mr. Anil Nagar, somebody from a very small village, but when he got the privilege to get educated from IIT BHU himself, he decided that what if this kind of education and exposure was also given to all the children of my country? And keeping that in mind, though he had a great career stint at Cognizant, he decided that I need to do something for education of the children of my country. Everybody, please give a huge round of applause. First of all, congratulations everyone. Congratulations. Big round of applause to all of you. Yaar. It's a dream. It's a big dream while having you here as successful CA candidates and rankers. And I will tell you why. थोड़ा मैं उससे पहले थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ. And I will come to this point. Why this day is very, very special to me. So we started this company about 15 years back. And I think we are one of the rare company which has survived so long in such a tough and different kind of ecosystem, because over the last 15 years lot of things have happened in education system. काफ़ी कुछ हुआ है एजुकेशन में. 15 साल पहले इंटरनेट बिल्कुल नहीं होता था और ऑफलाइन सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी. वहाँ से फिर बीच में काफ़ी चेंजेस आए, जियो लॉन्च हुआ एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, बट वी सर्वाइव्ड एंड वी आर वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशन कंपनी इन इंडिया एज ऑन टुडे. आई विल गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड इवन बिफोर दैट. सो आई कम फ्रॉम ए विलेज इन यूपी. किसी ने अगर यूपी से हैं कुछ लोग यहाँ पे, यूपी से कुछ लोग हैं, राइट? मैम इज देयर. सो यूपी में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है और इट्स ऑन द वेस्टर्न साइड ओनली. वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, तहसील है सिकंदराबाद. उसके पास एक गांव है. आई कम फ्रॉम दैट विलेज, वेरी स्मॉल प्लेस इन यूपी. पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो आई सॉ दैट स्ट्रगल विच मोस्ट ऑफ अस हु कम फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस दे गो थ्रू. काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जैसे मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, वो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि देयर इज नोबडी टू गाइड यू. दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपके गांव में स्कूल होता है, वो सरकारी स्कूल होता है ऑफ कोर्स, और उसमें आधे टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ होता है, आधे तो होते ही नहीं है. तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर बताएंगे आपको कि ये इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, ये ज्वाइन करेंगे, वो लेकिन ज्वाइन नहीं करते कभी भी. तो वो चलता रहता है. तो दूसरा वो होता है कि घर पे तो कोई है नहीं आपको बताने वाला, और जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे ये सब होता है. इनफैक्ट जो एक दो टीचर्स होते हैं ना, आई थिंक यू कैन कोरिलेट, वो भी स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो बोलेंगे मेरे ट्यूशन आना मेरे घर पे. सम ऑफ देम विल डू दिस. तो यार ऐसे ही मैंने पढ़ाई की, यूपी बोर्ड में किसी तरह 12th किया. लेकिन वाइल आई वॉज इन विलेज और ये सब चल रहा था लाइफ में, तो एक बात समझ में आई कि उस सिचुएशन से निकलने का जो तरीका है, उस गरीबी से निकलने का तरीका जो है, वो डिफरेंट, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, वहाँ से निकलने का एक तरीका है, वो है एजुकेशन. सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन. ये बात समझ में आ गई, बिकॉज और कुछ नहीं होता. पेरेंट्स जैसे मैंने बताया पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल तो सरकारी स्कूल था ही, वहाँ पे जितनी भी लिमिटेड वो लोग पढ़ा सकते थे, ऑफ कोर्स पढ़ाते थे, बट वो बहुत ही वो लोगों का क्वालिटी वाइज बहुत ही लो होता है. तो फिर ये समझ में आया कि यार पढ़ाई से ही कुछ होगा लाइफ में. तो तब जब मैं 12th में था, 11th में आया, तो 11th में हमारे हिंदी मीडियम में एक बुक होती थी, कुमार मित्तल बुक, फिजिक्स के लिए होती थी. अगर आपने हिंदी मीडियम में किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा. तो उसमें क्या होता था, क्वेश्चंस होते थे, चैप्टर है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, सबसे लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन होते थे जिनके आगे IIT लिखा होता था. तो वहाँ से मुझे पता लगा कि IIT नाम की कोई चीज़ है. फिर पता लगा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है. फिर पता लगा कि अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाए तो भाई फिर तो मज़ा आ जाएगा, मतलब लाइफ ही चेंज हो जाएगी. दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ IIT. आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ IIT. आई वर्कड हार्ड, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, बट इवेंचुअली आई क्रैक्ड IIT. चाहिए आई गॉट इनटू IIT. आई वेंट टू IIT BHU 2002 बैच एंड बीटेक किया मैंने. और IIT से बीटेक करने के बाद लाइफ एक्चुअली चेंजेस, बिकॉज ये इंडिया में ये है कि ये कुछ एग्जाम्स हैं, वो एक बार आपने क्लियर कर लिया तो आपका एक लेवल ऑफ सक्सेस तो हो गया. अब आगे आप IIT में हो तो ठीक है, वहाँ पे अच्छी कंपनीज आएंगी, आपका प्लेसमेंट भी होगा, जॉब अच्छी लगेगी, वो सब होगा. मेरे साथ भी हुआ. IIT से निकलने के बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया. लेकिन जैसे ही मैं IIT में पहुंचा और उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे सारे बहुत स्मार्ट लोग थे सब. कोई दिल्ली से आया था, कोई
DBS से पढ़ के आया है, कोई चेन्नई से, हैदराबाद से, अच्छे अच्छे स्कूल से लोग पढ़ के आए। और जब मैंने उनको खुद से मतलब कंपेयर किया, नाउ वी आर ऑल टुगेदर राइट, तो हम सबका लेवल सेम ही था। तो मुझे लगा यार मेरे जैसे बच्चे तो मेरे गांव में बहुत सारे थे, लेकिन IIT में ये जो बच्चे आए हैं तो अच्छी अच्छी जगह से आए। तो मुझे लगने लगा कि यार जो मेरे गांव में जो बच्चे थे वो भी अच्छे थे, वो भी इंटेलिजेंट थे, वो भी स्मार्ट थे। ओनली थिंग वाज कि उनको गाइडेंस नहीं मिली थी। ओनली थिंग वाज गाइडेंस अगर पता भी लग जाए, जैसे मुझे पता भी लग गया IIT करना है, तो करना कैसे है, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या टूल्स होंगे, कौन पढ़ाएगा, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये रियलाइजेशन शुरू हो गया बहुत ज़्यादा कि यार गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं या लोग मैं देख रहा था वो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि यार छोटी जगह में जो लोग आते हैं, छोटे टाउन से जो लोग आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनके अंदर फायर है, दे कैन डू रियली बिग इन देयर लाइफ, बट गाइडेंस नहीं है और उनके पास टूल्स नहीं है कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ये सब चलता रहा, मतलब अंदर अंदर चलता रहा कि क्या, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में, बट ये मन में चलता रहा कि ये प्रॉब्लम है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। मुझे कुछ करना है इस बारे में। तो शुरू में समझ में नहीं आया, क्योंकि IIT में, क्योंकि मैं खुद ही एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था कि घर में हार्डली फाइनेंशियली सर्वाइवल होता था, मतलब क्योंकि पेरेंट पढ़े लिखे नहीं थे, खेत भी थोड़े से थे हमारे, 2-3 बीघा खेत थे, तो सर्वाइवल होता था। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार कुछ जॉब लगे, कुछ अर्निंग शुरू करूँ, वही मेरी उस टाइम पे काफ़ी प्रायोरिटी होती थी। लास्ट व्हेन आई वाज वर्किंग विद in corporate, I was working with Cognizant Technology Solutions in Gurgaon only. And then one incident happened. I got married. And my wife is, and I am telling you why this is a very important day, my wife is CA. And she was working with EY at the time. As soon as I got married, I got that courage that now I have someone with me who can probably support me financially. सो एक टाइम जब ऐसा आया, मुझे लगने लगा कि यार मुझे नहीं करना है कॉर्पोरेट, मुझे तो लोगों के लिए कुछ करना है। तो देन दिस लेडी बिकेम माय सपोर्ट सिस्टम कि यार पैसे तो घर तो चलाएगी मुझे जो लाइफ में करना है मैं करूँगा। सो आई गॉट दैट फ्रीडम इन ए वे टू बिगिन विद, क्योंकि अगेन मेरा बैकग्राउंड तो वैसा ही था। तो मैं शायद अगर वो नहीं होता या ऐसा कुछ लाइफ में नहीं हुआ होता, शायद मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ता। और फिर एक ट्रिगर आया लाइफ में, जब मेरी कंपनी मुझे US भेज रही थी, क्योंकि मैं तो टेक में था, तो हमारे क्लाइंट US में होते थे। मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि आपको US जाना होगा। मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, मुझे तो इंडिया में रहना है, इंडिया के लोगों के लिए काम करना है। एंड आई हैड बैकअप, माई वाइफ वॉज CA, शी वॉज वर्किंग वेल, अर्निंग वेल, एंड आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2010. एंड for me, vision was very simple. I want to do something for people who are in smaller places, who have fire in them, who want to do something big in their life. Can I guide them? Can I provide them the path? Can I help them achieving their dreams? तो उसमें सबसे पहले जो हमने चूज़ किया था, वो चूज़ किया था जॉब्स, क्योंकि मैंने गांव में देखा, जब मैं अपने गांव में जब देखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जॉब, कि मेरे सारे दोस्तों ने 12th कर लिया था, 12th के बाद लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया कहीं ना कहीं से, जॉब नहीं लग रही थी। सो वी थॉट लेट्स हेल्प देम इन जॉब। सो वी आइडेंटिफाइड कि गवर्नमेंट में बहुत जॉब निकलती हैं, लेट्स हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड गाइडिंग दोज पीपल। तो सबसे पहले हमने शुरू किया इस कंपनी में, वो लोगों की जॉब लगवाने में हेल्प करनी शुरू की। उसमें भी हमने गवर्नमेंट जॉब चूज़ किया था, और गवर्नमेंट जॉब में वही जो टू बिगिन विद लेट्स से बैंकिंग एग्जाम्स होते थे। बैंक का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ही होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स से मैंने पढ़ाना शुरू किया। I was lucky, second time when I met Saurabh, my other co-founder. As soon as I had started, Saurabh came on board. Saurabh had same passion कि यार करना है, यार कुछ करना है, और स्पेशली एजुकेशन में कुछ करना है। एंड यू नो एक strong force बन गया. While I was very very passionate about helping people and solving their problems, Saurabh was very passionate about education. कि यार एजुकेशन इज अ टूल, इससे करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और फिर जर्नी बहुत अमेजिंग हो गई। खैर अमेजिंग तो अब रेट्रोस्पेक्टिव में लगती है, बट काफ़ी चैलेंजेस भी आए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई लाइफ में। बट द पॉइंट विच आई वाज सेइंग अर्लियर, व्हेन यू आर ड्रिवन बाय योर पैशन, जब आपके अंदर आप पैशन से ड्राइव हो रहे होते हो, आप यू वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर द वर्ल्ड, यू वांट टू चेंज लाइव्स, तो
आप बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल जाते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेल जाते हो, आप रुकते नहीं हो। तो हमारी लाइफ में भी हुआ। पिछले 15 सालों में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जहाँ पे लगा कि यार कैसे करेंगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हैं। आप कुछ कर रहे होते हो, कुछ करते हो, फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सब हुई, बट मुझे ऐसा लगता है जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक यू सक्सेसफुल। कुछ ना कुछ हो जाता है तो आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो। हमने पहला जो ये शुरू किया था, पहला जो सेटअप शुरू किया था, नोएडा में शुरू किया था। इस ब्रांड का नाम था कैरियर पावर। वहाँ से शुरू किया, लक्ष्मी नगर नहीं, पहले नोएडा में शुरू किया था, उसके बाद फिर ओपन किया ऑल अक्रॉस इंडिया। बट क्योंकि हम बहुत पैशन से ड्रिवन थे और बहुत सिलेक्शन ओरिएंटेड थे कि यार सिलेक्शन देने, आवर एग्जिस्टेंस मीन्स सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, क्लियर फोकस था। वी नेवर प्रायोरिटाइज रेवेन्यू प्रॉफिट, हम कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। हमने प्रायोरिटाइज किया बच्चों को, प्रायोरिटाइज किया उनकी सक्सेस को। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेज़ी से फैला, बहुत लोग आने लगे। जब हमने शुरू किया था तो एक बच्चे से शुरू किया था। पहला बच्चा हमारी जो क्लास में आया था, जिसमें हमने पढ़ाते थे, करीब 15-20 दिन के बाद आया था जब हमने शुरू कर दिया था। बट विद इन 2-3 मंथ्स हमारी क्लास फुल थी, एकदम फुल, मतलब इतनी फुल थी कि सारी सीट्स भरी हुई थी। लोग डोर के पास खड़े होते थे सुनने के लिए कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं। वो दिन भी आया। फिर हमने एक्सपेंड किया ऑल अक्रॉस इंडिया, नोएडा से फिर दिल्ली गए, दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, ऑलमोस्ट ऑल मेजर प्लेसेस इन इंडिया। ये 16 तक किया हमने, जहाँ फिजिकली हम पढ़ाते थे। वी हैड ए ह्यूज टीम ऑल अक्रॉस इंडिया, हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग लोकेशन में पढ़ाते थे। 16 में हमने रियलाइज़ किया कि यार अगर हमें मास लेवल पे एजुकेशन को लेके जाना है तो ऑफलाइन से शायद उतनी बात नहीं बनेगी, ऑनलाइन इज़ द राइट वे। 16 में क्या हुआ था, जियो लॉन्च हुआ था और जियो से सडनली उन्होंने, इनफैक्ट पहला साल जो जियो का था उसमें फ्री था। उसके बाद उन्होंने बहुत नॉमिनल चार्ज करना शुरू किया था। अभी भी जियो इज़ द चीपेस्ट। इनफैक्ट वर्ल्ड में वी आर द वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे डाटा कॉस्ट इज चीपेस्ट। तो डाटा सडनली चीप हो गया और हमें लगा कि अब हम लोगों के घर तक, गाँव में, शहरों में, छोटी जगह में, हर जगह पहुँच सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। That's when we started Adda 24/7 in 2016. We decided to close Career Power and completely focus on Adda 24/7. Since then it has been a journey, very exciting journey. ऑनलाइन में हमारा फोकस बहुत क्लियर है। 3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं। पहला हमारे लिए रहा है कि वी आर ए कंपनी फॉर एवरीवन, फॉर मासेस, कि आप कहीं भी रहते हो, शहर में रहते हो, छोटे टाउन में रहते हो, गांव में रहते हो, we are going to provide you education irrespective of your location. Accessibility is one big thing for us, and we are mobile first tech company, तो पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा everything is created in a way so that आप ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ सको। सेकेंड चीज़ हमारे लिए मैटर करती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, कि हम कैसे हाई क्वालिटी एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाएं। इनफैक्ट व्हेन आई कंपेयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में क्या होता है, एक क्लासरूम होती है, क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं, और कितनी हो सकते हैं, मान लो 50 बच्चे हैं, या बड़ी क्लासरूम में तो 100 बच्चे होंगे। उन 100 बच्चों से आपकी फीस आती है, रेवेन्यू आता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी दे पाते हो। सो दिस इज़ ए लिमिटेशन इन ऑफलाइन। बट ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आपकी क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट ऑन क्वालिटी। तो हमने भी वही किया। जब हम ऑनलाइन में आए तो हमारे पास बहुत बच्चे आते थे अक्रॉस इंडिया से, बहुत बच्चे आते हैं हर जगह से। हमारा जो क्लास है वो बड़ा हो गया, एंड अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी, क्योंकि अब हम इतने सारे लोग हमारे क्लासरूम में हैं, तो वी कैन इन्वेस्ट दैट मनी टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी। एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, दे आर सम ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। दे आर कमिटेड एंड दे आर कमिटेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी सिलेक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन। थर्ड थिंग विच मैटर्स टू अस इज अफोर्डेबिलिटी, कि कैसे हम एजुकेशन को हाईली अफोर्डेबल बनाएं सभी के लिए। एंड उसका कोरिलेशन भी ऑनलाइन ऑफलाइन से ही समझ सकते हैं आप, कि जब हम ऑफलाइन में होते हैं तो हमारी क्लासरूम की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो हमें सर्टेन फी चार्ज करनी पड़ती है। इसके बाद इन्फोएज केम इन आवर कंपनी एज ए इन्वेस्टर। इन्फोएज आप समझते होंगे इंडिया का सबसे बड़ा टेक इन्वेस्टर है। सो इन्फोएज इज लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर ऑफ जोमेटो, पॉलिसी बाजार, नौकरी, शिक्षा, ये सब जोमेटो कंपनी है। दे इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी एंड वी आर द ओनली एजुकेशन कंपनी इन इंडिया जिसमें इन्फोएज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। Later on, Westwich Capital came in, which is one of the largest global investor in the world.
एंड लास्ट इन्वेस्टर विच केम ऑन बोर्ड वॉज गूगल. गूगल आप लोग समझते होंगे, गूगल इज अगेन वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी चूजी, very forward looking, and we are the again only company where Google has directly invested. Google US has directly invested as a company, and again when they invested in our company, the only thing which mattered was the vision. They were very excited about our vision, that what we are thinking, how we are thinking, what kind of impact we want to bring in this country, and the long term approach we have. Other than investors, so as of now we cater to almost all exams in India. करीब 500 एग्जाम को कैटर करते हैं. सबसे लास्ट में जो हमने एग्जाम शुरू किया है वो है ये CA. This is very recent to us, about a year, no, not just Ekagrata started about more than a year back, but we joined hands about 7-8 months back. But I am very proud of all of our students and the kind of results you have given. Very very proud moment for us, for me, our whole Adda family, even my personal family. My wife talks about it a lot कि अच्छा अब CA में भी हमारी रैंक्स आ रही है. सो कंपनी वाइड भी एक बहुत एक्साइटमेंट है और घर पे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि यार अब हम CA कैटेगरी में, CS कैटेगरी में बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और आगे 2-3 साल में तो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग एकाग्रता एंड अड्डा. इनफैक्ट just 1 or 2 lines about Ekagrata. When we met Ekagrata team about 8-9 months back, I was very very excited about their vision on quality. कि यार जो भी करना है ना वो हाईएस्ट क्वालिटी के साथ करना है, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में स्पेशली ऑनलाइन में क्वालिटी इज अ बिग प्रॉब्लम. कोर्स कंप्लीट नहीं होता, या जो पढ़ाया गया आपको उसमें से कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं है, बस इस तरह हो गया. तो when I met Anshul, this is one thing I clearly saw in them, that they are very very focused around quality and selections. and अभी जब रिजल्ट नहीं आया था तो करीब 2-3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, एंड वी वर डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग कि यार इस बार हमारा रिजल्ट आएगा तो क्या करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे. एंड वी वर डिस्कसिंग, टॉकिंग कि यार हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी ये रैंक आ सकती है, इनकी ये रैंक आ सकती है. वो सब हम प्लान बना रहे थे. और जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उस दिन हमारा ऑफिस में एक अलग ही एनर्जी थी, अलग ही वाइब थी. एवरीबॉडी शाउटिंग, क्लैपिंग कि ये रैंक आ गई, 7th रैंक आ गई, 48. इट वाज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. So thank you Ekagrata team, and thank you so much guys choosing us, and look forward to being your partner even beyond this starting point. हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और करेंगे फ्यूचर में भी, एंड वी होप दैट हम आगे भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेंगे. बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार जब वाइल यू हैव बिकम CA एंड नाउ यू विल गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बस ये ध्यान रखना कि देश को आपकी बहुत ज़रूरत है. थोड़ा नेशनलिज्म वाली थॉट जरूर रखना कि यार देश के लिए कुछ करना है, और मासेस के लिए, लोगों के लिए जो उतने प्रिविलेज नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी कुछ करना है. बस ये थॉट रखना. आप सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके सपोर्ट की जरूरत होगी. बस वो एक दिमाग में रखना. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू गाइस, थैंक यू. So that was Anil sir for all of us. Guys, one more round of huge applause please. Very good. कि अनिल सर की भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी लाइफ में एक CA आई. So kudos to ma'am also, and kudos to all the CAs of our country. Now guys, it's time. Sir has already mentioned कि second turning point तब आया जब सौरभ बंसल सर से उनकी मुलाकात हुई. So I'd like to take a minute to introduce our visionary and our co-founder Mr. Saurabh Bansal, who turned his passion for teaching into a life-changing mission for millions across India. After a successful career as an AVP at a leading bank, he boldly left his corporate job to follow his true calling in education. Driven by innovation and commitment to growth, he lives by the mantra, what's one new thing you tried today that made a difference? So SB, we would like to know, what's that one thing that you tried today and that made a difference? Everybody please give a huge round of applause for our co-founder Mr. Saurabh Bansal. Yeah, thank you Disha, you really gave a nice introduction. First of all, congratulations to all the students for clearing this leg of the exam, and congratulations to all parents who are here. And अनिल ने ऑलमोस्ट काफ़ी डिटेल में पूरी की पूरी हमारी जर्नी डिस्कस की है. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा एक कदम और पीछे जाऊंगा.
जब मुझे डिसाइड करना था कि ये सीए करना है या नहीं करना है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर नॉट इवन बॉर्न। तो मैं अभी बैठ के यही सोच रहा था कि मैं वो क्या टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज माई फादर हिमसेल्फ इज अ सीए। तो जब डिस्कशन हो रहा था कि क्या करना है, सो आई एम माई सेल्फ फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, आई वर्क विद अ बैंक लाइक दिशा सेड, बट सीए वाज समथिंग। जब पता चला कि पापा आपने भी सीए किया है, अच्छा फिर सीएस भी किया है, ये तो नहीं करूँगा जो आप कर रहे हो। सो बट देन आई एंडेड अप बीइंग वेरी क्लोज टू similar domain where I pursued my bachelor's and master's in finance and worked with closely with a lot of chartered accountants, right? Other than my dad, मेरे जो और close associations है CAs के साथ, वो है मेरे auditors and आप लोगों के अच्छे interaction के लिए आज हमने हमारे कंपनी के CFO को भी बुलवाया है। He himself is a rank holder way back in his time, Gaurav sir. And this is really great moment in our company, in our journey, with so many rank holders, toppers sitting in front of us. And जब अनिल बोल रहे थे, मैं थोड़ा पीछे एक दो बार मुड़ के देखा था, तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे थे कि सर ये हमारे अंशुल सर कब आएंगे, हमारे अमन सर कब आएंगे। So I will not take lot of time, but एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर है and you know this is a journey and हम चाहते हैं कि इसके बाद जो आप लोगों के legs हैं with respect to you know when you'll join some companies for your internships or maybe you know join corporates as well. So we have also got our HR here, you know she's an HR specialist, she can help you with you know some amazing tips to clear your interviews. जिस दिन result आया उस दिन हमें अपने auditors जो कि Ernst & Young है उनसे भी बात की that if they can help us place our you know toppers and you know those who have cleared exams, studied with us, so they were more than happy to interview you guys. So these are some good things which you know we tried to you know kind of club together before this event. So आप में से कुछ भी कोई भी चाहता है कि with big fours and you know some amazing top CA firms अपने internships करना चाहता है, articleships करना चाहता है rather, so do reach out to the entire team. I mean, we'll be more than happy to you know help you all. So Ekagrata, yes, CA is the most recent vertical exam category which we started, and किस तरीके से वो पूरी journey शुरू हुई एकाग्रता की, let us have a look at that. So Satvik, can we have the video? रास्ते भागे से आगे जिंदगी। फाइनली हम लोग यहाँ पे इंदौर के ऑफिस में हैं और अभी तक किसी को पता नहीं कि हमारी अनडिस्क्लोज लोकेशन कौन सी है, बट फाइनली इंदौर के ऑफिस में वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ नाम का मतलब होता है being together. It's not just concentration. एकाग्रता का मतलब होता है being together. हम लोग साथ साथ में हैं। शाबाशियाँ, शाबाशियाँ। एकाग्रता के co-founders पहुंच गए हैं अब दिल्ली। शाबाशियाँ, शाबाशियाँ। बंदेया राह पे चल बंदेया राह पे चल बंदेया राह पे चल बंदेया। एकाग्रता सीए ने मचा दिया यारो यार। तो क्या टूटी शमशीरें, तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह,
हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अभी आप लोगों की आर्टिकलशिप शुरू होगी. So whatever help you guys need, do reach out to us. So I would like to welcome Ekagrata team. So now we have our amazing team of Ekagrata here. So Anshul sir, I would want you to, say a few words to our aspiring chartered accountants here. Thank you so much, Saurabh sir. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So sorry for my bad throat. I was just trying to preserve my voice for this event, but God had some other plans. So यार ये जो दिन है ना, ये I think guys ये दिन आज इन बच्चों की वजह से ये मौका हमें मिला है. So सबसे पहले हम सभी टीचर्स आप सभी बच्चों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे. Thank you so much. एकाग्रता ना भूतो ना भविष्यति. The tagline means ना ऐसा पहले कभी कोई हुआ था ना आगे कोई होगा. एकाग्रता got birth in 2023, August 2023, when we all came together and with a vision. The vision was to create something for the CA students. The journey just went ahead, आगे बढ़ते गए और फिर July 2024. How do we recount July 2024 when we came and we met, the founders of Adda 24/7 और अनिल सर, सौरभ सर से हमने कहा यार कि सर हम लोगों को बच्चों के लिए कुछ और बड़ा करना है. Things in एकाग्रता were beyond our control. जैसा हमने सोचा नहीं था वैसा हुआ. इतने सारे बच्चों का प्यार मिला. I mean, I would like to put forward that हमारा YouTube चैनल जो है, जो जीरो से चालू किया था, in just 6 months it became 1 lakh subscriber YouTube channel. अब जब इतने बच्चे होते हैं और इतनी सारे चैलेंजेस होते हैं तो हम लोग उसमें बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे थे. बुक्स डिस्पैचमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट है और हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले ताकि हम सभी टीचर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने पे फोकस करें. चाहे अच्छे नोट्स हो, अच्छे प्रेजेंटेशंस हो, अच्छी किताबें हो, अच्छे लेक्चर्स हो, अच्छे एग्जाम्पल्स हो, टेस्ट पेपर्स हो, MCQs हो. तो अनिल सर और सौरभ सर ने कहा कि सर आप बाकी सारी टेंशन हमें दे दीजिए. And that is exactly where Ekagrata and Adda 24/7 collaborated. Thank you so much, Anil sir. Thank you so much, Saurabh sir. Thank you so much. If I recount this journey since July 2024, Chartered Accountants Day के दिन 1 जुलाई को हमने ये अनाउंसमेंट की थी कि Ekagrata and Adda 24/7 are together. उसके बाद लाइफ बहुत टर्ब्यूलेंट रही. CA का कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया. जहां पर पहले एक साल में 3 एग्जाम्स होती थी, अब साल में पहले 2 एग्जाम्स होती थी, अब साल में 3 एग्जाम्स होती है. पहले हम लोग कहते थे कि सीए की एग्जाम कौन कौन से मंथ में होती थी, मई एंड नवंबर. हम लोग कहते थे ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर.
after May there is November. Where there is will, there is way. After November again there is May. लेकिन अब months हो गए January, May and September. तो अब क्या कहेंगे? Try, never surrender. Because after May there is September. After May there is September. If you have prepared well, no need to worry. If you have prepared well, no need to worry. Because after September there is January. So यार साल में 3 एग्जाम्स हुए और बच्चे कंफ्यूज कि हम कौन सी एग्जाम्स दे. एंड द जर्नी ऑफ एकाग्रता वाज टर्बुलेंट. बहुत बैकलैश आया, बहुत हेट मिला, बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले. बट यू नो वन थिंग रिमेन्ड कांस्टेंट एंड दैट इज द मोटिवेशन एंड स्पिरिट ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेटर स्टैंडिंग ओवर हियर. और मैं चाहता हूं कि हम सब जन एक बार जोरदार तालियां बजाएं हर एक टीचर के लिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू सर. सो हमारे साथ यहां पर है सबसे पहले सीए गौरव जैन सर. ये सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल दोनों सब्जेक्ट्स दोनों लेवल्स पे पढ़ाते हैं. ही इज फ्रॉम न्यू दिल्ली. थैंक यू सो मच गौरव सर. एडवोकेट जयेश भंडारी सर फ्रॉम जोधपुर राजस्थान. सर इज टीचिंग सीए इंटरमीडिएट लॉ एंड ऑडिटिंग. थैंक यू सो मच जयेश सर. एकाग्रता's co-founder Mr. Jatin Demla sir from Indore. He is teaching CA Foundation, Mathematics, Economics and CA Intermediate subject of FM and SM. And I'm very happy to share कि इस बार यारो हमने Economics में 4 दिया है. Our topper is 96 out of 100 marks. Thank you so much sir. The person who stood always with me, CA Nishant Kumar from Prayagraj. Nishant sir is teaching CA Foundation, Mathematics and CA Intermediate subject of Taxation. What an amazing result we have got. How many students have got more than 300 marks in CA Foundation this attempt? 32 से ज्यादा students को 300 marks out of 400 marks मिले. Thank you so much Nishant bhai. We have got CA CS Swati Agrawal ma'am. She is teaching CA Foundation Law. What an amazing result in law. Thank you so much Swati ma'am. And we have got from Amchi Mumbai CA Akash Pednekar sir, who's teaching CA Intermediate Auditing and CA Final. And he has got so many ranks. Thank you so much sir. So यार अजहर मूवी का ना बहुत फेमस डायलॉग है. मोहम्मद अजरुद्दीन के दादाजी उनसे कहते हैं, अगर तू बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, लेकिन अगर तेरा बल्ला बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा. And this is exactly this entire team did. In spite of all the negative comments, all the backlash, हमने सिर्फ एक चीज की, हम हमारे बच्चों को पढ़ाते गए. और आज हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस ने हर एक हेट कमेंट का, हर एक नेगेटिव कमेंट का जवाब दिया है. And thank you so much all my wonderful students. We have got 6 all India ranks in CA Intermediate examination. कहते हैं CA Intermediate में 40 मार्क लाना डिफिकल्ट है. एकाग्रता CA में ऐसे 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स मिले हैं. More than 700 students have passed CA Intermediate examination from Team Ekagrata. So kudos to all of you. Thank you so much all of you. Thank you so much. Thank you so much, Anshul sir. That was an amazing introduction and it was so good to see that all your students were listening to you so carefully. एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये सारे बच्चे इतने शांत क्यों रहते हैं. कैन यू मेक सम एफर्ट कि ये शोर करें? मैं चिल्ला के परेशान हो गई अंशुल सर. एक बार हो जाए. चलिए मैम 2 एफर्ट्स है मेरे पास और ये फॉल्स एफर्ट्स नहीं होंगे ना. करेक्ट राइट. ठीक है. सबसे पहला एफर्ट करते हैं जो मैं क्लास में हमेशा कहता हूं. डू यू ऑल रिमेंबर क्या कहता हूं मैं क्लास में? एनीवन, एनी गेसेस? लास्ट स्टेटमेंट इन माय क्लास. पढ़ते रहो सीखते रहो. रेडी ऑल ऑफ यू? शैल वी से इट टुगेदर ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 स्टार्ट. पढ़ते रहो सीखते रहो आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद. मेरे पास एक और स्टेटमेंट है. देखो जोश चाहिए. ठीक है, पूरा जोश जितना भी है नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर आओ. सबको समझ में आ गया बोलो. सबको समझ में आ गया बोलो. Nice. But very well done, guys. Finally, I can see that happiness on all your faces.
And now I'd request both of my founders to please join us on the stage and felicitate our very, very capable faculties here. Guys, एक बार जोरदार तालियां, please. All right, thank you so much, both of you, and congratulations once again to the entire team of Ekagrata. Guys, please take your seat. Thank you, ma'am. Guys, तालियां तो बजा दीजिए, आप ही सगे फैकल्टीज हैं. So बहरहाल अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हमने लाइन अप करके रखी हुई हैं. लेकिन मैं चाहती हूँ यार, बहुत सारे बच्चों से ना मैंने अलग अलग टीचर्स के नाम पूछे, फेवरेट फैकल्टी कौन है, तो किसी ने किसी का नाम, किसी ने किसी का नाम लिया. अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी कि अंशु सर आ जाइए. अब जरा फैकल्टीज के साथ थोड़ी मस्ती हो जाए, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स तो ऐसे होंगे जो सिर्फ आप जानते होंगे अपनी टीम के बारे में, राइट? मुझे पता चला था हमारे एक फैकल्टी हैं, पेरेंट्स आज थोड़ा बच्चों को माफ कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के बाद उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, ठीक है? तो पहला सवाल, हमें पता चला एक फैकल्टी हैं जो नाराज होते हैं तो थोड़ा गालियां दे देते हैं कभी कभार तो बच्चे डरते हैं. तो क्या हम खोल देंगे पोल? अंशु सर बताइए कौन है वो? मैं उनके पास चला जाता हूँ. जतिन सर. मैम, पर मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा. ये खुश होता है तो भी गाली देता है, ये नाराज होता है तो भी गाली देते हैं, गुड मॉर्निंग की जगह भी गाली देता है, ये गुड नाइट की जगह भी गाली देता है. होता क्या है ये? तो सबकी पोल खोलनी है. ओके, सो यार सबसे पहले निशान सर की पोल खोली जाए. क्या सवाल पूछा जाए निशान सर से? निशान सर की पोल मैं ये खोलना चाहता हूँ कि यार हम लोग ना मॉर्निंग बडीज है. हम लोग दोनों सुबह 4:30 बजे उठते हैं और हमारा फ़ोन चालू होता है सुबह 4:30 बजे, फिर वो कभी 5:30 कभी 6 बजे तक चलता रहता है. तो किसी का भी अगर उस समय कॉल आता है और हमारा कॉल बिजी होता है तो पता चल जाता है कि अंशुल और निशान बात कर रहे हैं, राइट सर, एब्सोल्युटली. लेकिन इतनी सुबह से कोई और कॉल करता नहीं है. कभी कभी ये जरूर होता है कि हमारे घर वाले उठ के इरिटेट हो जाते हैं कि तुम लोग इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों बात कर रहे हो. तो ये है सर, ये पोल खोलना नहीं था. पोल खोलना ये है कि सुबह 4:30 बजे भी भगवान ने क्या इनके अंदर एनर्जी डाली है भाई, कि पड़ोसी आकर कंप्लेन करते हैं कि कितना जोर जोर से बात करते हैं. हाँ सर, बिल्कुल बैठ जाइए. सर, आकाश सर के बारे में पोल खोलते हैं. सो अभी हम लोग सब जने टीचर्स यहाँ पर जब दिल्ली में मिले थे, छोटी सी ख्वाहिश आकाश सर से की थी. बता दे सर. ये बनता है ना यार. आप लोग बताओ, मैं और जतिन सर यहाँ गुड़गांव में इतने दिनों से थे. ये बंदा मुंबई से आ रहा है, सर आ रहे हैं जोधपुर से, मैडम आ रहे हैं इंदौर से, वो आ रहे हैं प्रयागराज से. उनसे कहा महाकुंभ का थोड़ा पानी लेके आ जाना, हम यहीं पे डुबकी लगा लेंगे. इनसे एक फरमाइश की थी कि वड़ा पाव लेके आना यार मुंबई का, सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव. और आपको पता है इन्होंने क्या किया? नहीं लेके आए. कैसे कहोगे जतिन सर, सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा था? सर देखो, ईमानदारी से यहाँ से तो हम भी ऑर्डर कर सकते थे यार. आया ना, कल आया था. लाना आपको था. वड़ा पाव इम्पोर्टेंट, देखो वड़ा पाव की इंपॉर्टेंस थी, इंपॉर्टेंस थी लाने वाले की यार. आप मुंबई आओ. अमेजिंग. बट सर ने ही मेड अप, कल की फ्लाइट से वड़ा पाव आ गया था, दिल्ली वड़ा पाव पहुंच गया था मुंबई. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर. तो फिर ऐसी ही एक फरमाइश हमने की थी जयेश सर से, जो कि जोधपुर से है. और सर से हमने कहा था कि सर जोधपुर के मिर्ची बड़े लेके आइए, और वो भी जोधपुर में एक बहुत स्पेसिफिक दुकान है चौधरी मिष्ठान, वहां के मिर्ची बड़े लेके आइए. आए थे मिर्ची बड़े, बहुत सारे मिर्ची बड़े लेके आए थे. सर यू आर अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. गौरव सर, हमने बस एक फरमाइश की, सर आप लोकल लाइट हैं, आप दिल्ली वाले हैं,
हमें कभी तो घर पे बुलाओ, हमें घर का खाना नसीब करवाओ। आज तक ना सर ने हमें घर पे बुलाया है। आप आओ ना, आप आओ। हमने खुद ने 2 बार बोल दिया सर घर का खाना खिला दो, घर की याद आ रही है, फिर भी आदमी ने एक बार भी नहीं खिलाया यार। 55 किलोमीटर है ना यहाँ से, तो मैंने कहा क्यों परेशान। सुनो, इंदौर मेरे हिसाब से 800-900 किलोमीटर होगा। हम गूगल मैप की दूरियां नहीं, दिल में दूरियां नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, सबको जाने से पहले, नहीं तो रात को करते हैं आज, ठीक है। और सर को भी इनवाइट करते हैं। सर प्लीज ज्वाइन करिए हमें आज रात को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंजुल सर। अरे हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति हम कम ऑन। अरे नहीं, आप बहुत देर से शांत हैं, आइए। सर डेली हाँ ये बात तो सही है, डेली 4:30 बजे बात क्या होती है? डेली 4:30 बजे क्या बात होती है? वो वाली नहीं बतानी है। नहीं वही वाली बतानी है। नहीं ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं यार, वो बहुत बोरिंग है जो बात सुबह होती है, और जो इंटरेस्टिंग बात होती है वो हम यहाँ बता नहीं सकते। वो नहीं बता सकते। वो कई बार हम लोग ऐसे बात करते भी हैं और सोचते हैं कि थैंक गॉड कोई इस कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, YouTube पे हम लोग इस समय लाइव नहीं है। पर वो कोई एम नाम की कोई व्यक्ति है, उनका नाम क्या था? मैं मिस आउट कर रहा हूँ, बोल तो ये। जिम मोरियार्टी? नहीं। वो एम नाम का कुछ था ना सर? सर ब्लश को देखो। ये तो काफी तगड़ा पोल खोलने वाला था, बच गए अंशुल सर। तो एनीवे, नाउ बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है और अभी हमारे पास काफी सारी अच्छी चीजें करने को हैं, आई वुड रिक्वेस्ट सम ऑफ माई स्टूडेंट्स टू स्टेप फॉरवर्ड। 2-4 कोई भी जो कॉन्फिडेंट लोग हो, जिनको अपने टीचर्स को आज चैलेंज करना हो। रोज रोज ये तुम्हें कहते हैं तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये पढ़ लो, तुम्हें ये ऐसे करना है, आज तुम आ जाओ। मजूमदार साहब सबसे पहले आप आइए। ध्रुवी फ्रॉम दिस साइड, आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस। आ जाओ, कुछ नहीं होता। भूमिका आओ, कम ऑन, यू वॉक। आई डोंट रिमेंबर योर नेम, आई एम सॉरी अबाउट दैट, प्लीज कम। भूमिका कम। देखो मुझे बच्चों के नाम भी पता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बुलाना चाहूंगी, ओके ही इज डायरेक्टली ऑन द स्टेज, लुक एट द कॉन्फिडेंस। प्लीज कंटिन्यू, आप भी चलिए। ठीक है सर, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। आइए अंशु सर, चलिए। स्वाति मैम आप भी चलिए। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर 3-3 की एक टीम हम डिवाइड कर रहे हैं। हमारे सारे फैकल्टीज एक तरफ है निशांत सर, और हमारे जो स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो एक तरफ हैं। हम खेलने वाले हैं डम शरेड्स का एक सिंपल सा गेम, ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं सीएस डोंट पार्टी, सीए पार्टी करते हैं। ओके ठीक है, तो भाई ये देखो पहले से इन्होंने टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बच्चों यू गॉट टू बक अप, ओके। मैं आपको बताऊंगी मूवी का नाम, पहले बताइए कि कौन गेस करेगा सबसे पहले। Who wants to go first? गेस कौन करने वाला? अरे भाई आगे बढ़िए। नहीं, गेस आप करेंगी। आपकी टीम पहले गेस करना चाहती है या मैं बच्चों को चांस दे दूं? देखो ये पहले जाना चाहते हैं, पहले जीतना चाहते हैं। डू यू वांट टू गो फर्स्ट? मैं तुम्हें चांस दूंगी बिकॉज आई प्रेफर स्टूडेंट्स। ठीक है, अरे तुम्हें, हाँ ठीक है, कूल, इधर आओ। द फर्स्ट वन, डोंट से इट आउट लाउड, अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, वेरी स्मार्ट। So she is going to act. All of you have to guess. और टीम आप टाइमर चला दीजिए, एक्ट करने के लिए 1 मिनट का है। ओके, आप तीनों डिसाइड करके तीनों एक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और आप डिसाइड कर लो who would like to act. नहीं बोल सकते। हाँ जी, sure. So this is the first. तू कर लेगा यार, मेरे को यकीन है। यार इतनी चीटिंग कर रही हूँ मैं तुम लोगों के। और क्या क्या मदद करना चाहता है, यू मोर देन वेलकम। फिर से देखना। ये बच्चे तो पहले से हार मान रहे हैं अंशु सर, कैसे चलेगा? मैं वही कह रही थी, मुझे लोगों ने बोला था। हाँ डिस्कस। हाँ वेलकम, व्हाट्स योर नेम? कुशल सोमानी। चलो वी हैव कुशल, अब टीम बनेगी स्ट्रॉन्ग। पहला वाला, ठीक है, द फर्स्ट। अच्छा कौन सा करना चाहते हो? चलो ठीक है बच्चे, वील डू। कौन सा करना चाहते हो? नाम बताओ। द लास्ट वन। बच्चे अपने आप ऐसे नहीं ठीक करते। कर ली तू मेहनत, मैम एग्जाम क्लियर करके आप क्या चाहिए आप? यार चल क्या रहे तुम लोग? तो you should choose the hard.
हाँ तो अरे पागल हो क्या मुझे ऐसा नहीं। इसका ही देख, ये वाला मैं कर। चल ठीक है, अगर उन्होंने गेस कर दिया तो चलो ना, कोई नहीं पकड़। अरे सर अरे नहीं लोग तो थे बता रहे थे फेवरेट कितना चीट करते हैं। चलो टाइमर सेट करो फटाफट से फोन में कोई एक जना। आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम है टू एक्ट। 2-4 लोग मिलके भी एक्ट कर सकते हैं। टाइमर चलो, should I start the timer? Okay, your time starts now. 1 minute. घर में राम, बगल में चोरा। One more name. विष्णु। अरे नहीं, विष्णु नहीं। नहीं, निशांत you can't है। बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, हम फिर भी तुम्हें देंगे हाथ में बेटा के ऐसे कहते हैं अगर हम हार जाएंगे तो ये जीत जाएंगे। यार भाई लोग, अंशुल सर के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि अगर हम हार जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, तो दैट इज व्हाई वो अपेरेंटली हार गए। एक बार जोरदार तालियां हमारे एक्टर्स के लिए। अब तुम्हें गेस करना है, ठीक है? और तुम्हें तो सारी मूवीज पता है। शिट, हम दूसरी चूज करेंगे। हम आप कौन सी मूवी चूज करने वाले हो आप डिसाइड कर दो। कोई काम
going by the loudness. But anyway, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए दोनों ही टीम्स के लिए जोरदार तालियां. जीते हमारे स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. प्लीज टेक योर सीट्स. क्या आप कोई गाना गाना चाहते हो? तो तुम्हें मन है गाना गाने का, मैं जानती हूँ. अच्छा, आप लोगों को पता है कि एकाग्रता टीम में हमारे साथ एक सिंगर भी छुपा हुआ है. I know that's planned for later, but we can do it earlier as well. Maybe. ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? तो आप खराब आवाज में गा दीजिए. ऐसा भी है क्या? Hidden talent, please, most welcome. आइए इसी बात पर दोस्तों. यार अभी हूटिंग सी हुई थी तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा लग रही थी. है ना, एक बार हूटिंग हो जाए. चलो 1 2 3. थैंक यू. तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. All the very best, guys. Many congratulations. And here's to more ranks in the future. Everybody, yes, yes. बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. Thank you. ऐसा यार कहाँ ऐसा याराना. So I would request you to join us here and probably tell us a little bit what are some of the common obstacles, sir, जो हमारे candidates को आपके specific subject में face करने पड़ते हैं, and how do you think they can actually overcome that? So you need the mic. The most important thing is that कि the student should be able to relate with the teacher. Today as faculties, the more we are able to connect with them, जितने उनके doubts solve कर पाए, and most important point, it is after completing the class. जो connect student के साथ होना चाहिए, if that connect is there, then that जितने भी obstacles होते हैं, those obstacles can easily be overcome. One important point is that, especially with respect to the audit subject, is I feel that the gap is with respect to the theory and the practical. Today we all know that audit is done practically, but with students, they feel that it is a theory subject. So therefore, this gap can be bridged by showing the actual audit reports on the screen. Students will be able to understand ki how exactly things are happening in real life. So therefore, what I've planned is that in coming times, there will be interviews being conducted on the Ekagrata channel of audit partners who will come on board and they will explain to students how exactly practical life में भी audit हो रहा है. So I feel उससे ये gap आराम से bridge हो जाएगा. The next person that I'm calling is Swati ma'am. And Swati ma'am, आपकी एक बहुत famous line है. Law is love. It's not love. It's LOVE apparently. We have to make some very genuine efforts to probably fall in love with it. And how did that happen for you? Please ma'am. Ma'am, actually it did not happen directly with me. It was more always like भाई मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा लॉ से डर लगता था. वो नहीं है हमारी 3 Idiots का डायलॉग, all is well, all is well. So for me to study this subject, it was like law is love, law is love, law is love, and that is what I've actually from day one मैं बच्चों को भी कहती हूँ, भाई this is nothing, it is just love. You just fall in that, and you know like हमारी तो ये Gen Z है, Gen Alpha है, तो ये लोग अब वो love नहीं रखते, it's love. So law is love, and you know gradually what happened, हम लोग जब theory पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ read कर लो यार हो जाएगा.
बट अगर उसी को लिख लिख के करते हैं जैसे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हैं तो ये सब्जेक्ट भी जेन्युइनली स्कोर करवा देता है. सो देयर आर स्टूडेंट्स जिनको लॉ में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है और एग्रीगेट उसकी वजह से बन गया. सो दैट इज लाइक जस्ट द थिंग. Now I'd request Gaurav Jain sir to please join us and share his expertise and how are you feeling today. और मैं आई थी तो मुझे एक बच्चे ने नाम लेके बोला कि सबसे ज़्यादा डांट मैंने गौरव सर से खाई है और सबसे ज़्यादा फेवरेट भी मेरे गौरव सर हैं. सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर फेवरेट सर. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोग सीए जो करते हैं वो फाइनेंस, मुझे लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं लेते हैं. वो सिर्फ अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन पे ही फोकस है. और मुझे लगता है कि सी ए इज़ नॉट द स्पेशलाइज्ड डिग्री ऑफ फाइनेंस. बट जो आपका पूरा बेस बनने वाला है ना वो इसके अंदर बनने वाला है. भले ही आप CFA करें, FRM करें या काया करें, CAIA करें या कोई भी आप इंटरनेशनल कोर्स करें, तो ये पूरा आपका बेस बनाने वाला है. आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये CA आपका पूरा बेस बनाएगा. ठीक है. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं समझता हूँ, मैंने 2006 में क्वालिफाई किया था. तो उसके बाद मैंने ना कभी भी कोई टैक्सेशन, कभी भी कोई ऑडिट, ये सब नहीं किया. मैं सिर्फ फाइनेंस के अंदर ही था और मुझे लगता है मेरे ब्लड के अंदर फाइनेंस है. तो मैं जो भी सोचता हूँ सिर्फ फाइनेंस के बारे में ही सोचता हूँ. तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो भी फाइनेंस की तरफ जाए. मैं होता ही है, हमेशा घर में पेरेंट्स होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरा बिजनेस ज्वाइन करे. तो मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या करें, फाइनेंस में जाएँ. और फाइनेंस आज के टाइम में टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, सबको ही पता है. सबसे बड़ा पैसा कहाँ बनने वाला है? फाइनेंस में बनने वाला है. ठीक है. All right, everybody. Now I think it is the peak of the moment that we are at. Very quickly, everybody who is waiting for Aman sir to join us. एक सपना, एक सोच और एक जज्बा. ये कहानी है एक ऐसे सीए की जिन्होंने इंडिया की ऑडियो इंडस्ट्री को नए आसमान तक पहुंचाया. मार्केटिंग जीनियस, एंटरप्रेन्योरशिप के आइकन, ये है अमन गुप्ता. सीए कॉन्फ्रेंस में ही बोला था. बॉम्बे में. बहुत फेमस है. शार्क टैंक से बोलती है मार्केट में. शार्क टैंक में तो सर का वो वॉच. 2000s की कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर 2016 में बोट की शुरुआत तक स्ट्रगल्स भी थे, चैलेंजेस भी थे, पर सपने इनसे बड़े थे. आज अमन गुप्ता सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक रेवोल्यूशन है. मिलियंस की पसंद और हर यूथ का स्टाइल स्टेटमेंट. और आज वो आ रहे हैं हमारे बीच. तो स्वागत करिए सीए अमन गुप्ता का. Alright everyone, can we please have a huge round of applause for all our AIRs and Aman Gupta. I request you to please take your seats. Aman sir, if you please take. Thank you. Now both of our founders and Anshul sir, if you could please join us on the stage.
Everybody, please give up a huge round of applause. So can we move towards the lamp for the lamp lighting ceremony? Everybody who is waiting for Aman sir to join us is now very, very happy to have you here, sir. Welcome. And we are going to play a very special that was specially curated for you. So let's take a look at your video here. एक सपना, एक सोच और एक जज्बा। ये कहानी है एक ऐसे सीए की जिन्होंने इंडिया की ऑडियो इंडस्ट्री को नए आसमान तक पहुंचाया। मार्केटिंग जीनियस, एंटरप्रेन्योरशिप के आइकन, ये है अमन गुप्ता। 2000s की कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर 2016 में बोट की शुरुआत तक स्ट्रगल्स भी थे, चैलेंजेस भी थे, पर सपने इनसे बड़े थे। आज अमन गुप्ता सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक रेवोल्यूशन है, मिलियंस की पसंद और हर यूथ का स्टाइल स्टेटमेंट। और आज वो आ रहे हैं हमारे बीच, तो स्वागत करिए सीए अमन गुप्ता का। One interesting video just like Aman sir's journey, and I think all of us are very, very excited to hear it from the horse's mouth. So today you are an inspiration for all of us, each one of us here in this room and everybody out there in the country. So Aman sir, we'd request you to please join us on the stage and kindly share your journey as a CA. Everybody come on, CA. Congratulations, Ranjan. We have one more AIR, Bhumika Goyal. Huge round of applause for Bhumika. Saurabh sir. So there is one more AIR 46. So huge round of applause for Ritesh Pal. Congratulations Ritesh. And I would like to call Jatin sir, Swati ma'am. Congratulate Rishabh AIR 50. Congratulations Rishabh. Akash sir, Jay sir, Ashwin sir, Nishant sir. मैं जानना चाहूंगा सबको मजा आया अमन सर के साथ? कितना मजा आया? तो इसी के साथ अब हम एक बार आगे चलते हैं। हमारे AIRs के साथ साथ बहुत सारे एकाग्रता के स्टूडेंट्स हैं, 700 प्लस स्टूडेंट्स who have got selected
विद एकाग्रता, जिसमें से जो लोग आज यहाँ पे आए हैं हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। तो उसी के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अनिल सर, सौरभ बंसल सर, अंशुल सर, सो प्लीज कम ऑन स्टेज सर टू फेलिसिटेट योर स्टूडेंट्स। First of all, आप बताइए, first of all, congratulations to you. And how was your overall experience? आज अमन सर से कुछ सीखने को मिला? क्या सीखा? लाइफ में कितना ही फेलियर या आज कुछ भी आ जाए, गिव अप नहीं करना है, अपना सब कुछ को एज अ लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। तो आपकी क्विक जर्नी समझना चाहेंगे विद एकाग्रता टिल नाउ। कैसी रही आपकी जर्नी? हाउ यू स्टार्टेड? जर्नी बहुत ही अच्छा था। फाउंडेशन में भी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया, उनकी वजह से मेरा फाउंडेशन में भी बहुत अच्छा स्कोर आया था, जिसकी वजह से इंटर में भी मैंने इन्हीं से लिया क्लासेस। अंशुल सर की वजह से अकाउंट्स, कॉस्टिंग सब में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। निशांत सर से मैंने टैक्स पढ़ा था, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और ओवरऑल भी पूरा टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, कोई भी इशू में से तुरंत रिजॉल्व कर देता था और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Thank you so much. Thank you. I would like to call Ankit Gupta. Congratulations, Ankit. I would like to call Sanskriti Gupta. I would like to call Anshul sir as well. All Ananya parents as well. Sir, ma'am, please come on the stage. Hello everyone, my name is Ananya Goyal and I am a direct entry student and these are parents. So CA से तो मेरा कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी ये सोच के कि CA तो नहीं होगा तो ग्रेजुएशन करते हैं। So I went to Pune. I did my graduation from there, and I also pursued ACCA. फिर जब ग्रेजुएशन का आखिरी साल आया, मेरे को आगे कॉर्पोरेट में भी नहीं जाना था क्योंकि 20 साल के हो गए क्या कॉर्पोरेट में मुझे। So asked my father, should I pursue CA? He said, go for it. Go for it. He didn't, like I didn't have hope कि मेरा होगा clear. But I appeared for CA Inter Jan 25 and I appeared for both the groups and being a direct entry student मुझे CA का कुछ नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि OCIT ट्रेनिंग भी होती है। मेरे को बस ये पता था 6 पेपर हैं करने पड़ेंगे एक ही बारी में क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है। So I appeared for both the groups and I cleared it at the first attempt and motivators for me to pursue CA was Anshul sir. That has been my. Thank you, Ananya. So, But the word successful was there that mattered. I would like to call. I would like to ask you now when she have became CA finalist now. You as her mother and you as her father, how do you feel now? ये कह रही है कि आपको CA के बारे में नहीं पता था। It is not like that. We knew about CA thing, but the thing is कि I really wanted that the things that I have not accomplished in my life, I want my daughter to accomplish them at any cost. Because the thing is कि we as parents can dedicate the fees, structures and all that. But the thing is कि मैंने कहा Cherry, you have sorry Ananya, you have your dad's back and I am there for you whenever you need me. But you have to put in all the efforts that you can make to pursue, and I really appreciate. I am very great. I'm feeling very great.
very blessed and at the same time numb because there's pin drop silence and everybody's listening to me like anything. But the thing is ki Ananya, my daughter, you are doing great and I really look forward to see you as future CA soon. सर आप क्या Sir, कहना you are चाहेंगे? truly inspiring for her. Thank you so much. She is always like gaga about you. Anshul sir, especially लेके आई है कि I really want to meet my faculties and I feel she is really blessed to have you as faculty. हेलो एवरीवन, मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों को कि जो भी बच्चे आज जिस भी लेवल पे पहुँच रहे हैं उनके पीछे एक ही है, वो उनके टीचर्स। उनके बिना वो कहीं नहीं आगे जा सकते। उनकी रिस्पेक्ट, उनका हमेशा उनको फॉलो करना, ये कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो हैं तो आप हो। उनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू। Thank you so much. I would like to Anshul sir as well to please felicitate Ananya since I think more than Ananya, we should felicitate her parents. Definitely, definitely. Yes, that will be much better. But she has made her dream So I come have true. 3 things, one for each. Oh my God. So Yashika's sister is also our student, Anshul sir's student. Great. Ma'am, I would like to know how are you feeling today? Just few words from you. आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड। बहुत खुश हूँ मैं आज। एक्चुअली इसकी एल्डर सिस्टर भी फाउंडेशन के टाइम पे अंशुल सर से उसने ली थी, तो इसने भी इनका ही नाम सुन रखा था, तो इसको भी था कि मैं अंशुल सर से ही पढ़ूँगी। तो एक्चुअली उसके टाइम पे थोड़ा लॉकडाउन का था एंड एक्चुअली शी वॉज ऑल इंडिया कॉमर्स टॉपर इन CBSE in 12th एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो द श्री राम कॉलेज से उसने BCom ऑनर्स करी है, उसमें भी उसका रैंक था। एंड नाउ शी इज़ CA फाइनलिस्ट एंड शी इज़ डूइंग इंटर्नशिप इन KPMG। तो फॉलोइंग हर पाथ शी इज़ ऑल्सो मतलब CA ही करना था इसको भी कि CA ही बनना है। मैंने कहा CA, मैंने उसको स्ट्रगल करते हुए देखा है, ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम, रात में 2 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है, उसके लिए हम खड़े रहते हैं बालकनी में। एक अंदर डर भी रहता है कि कैब से आ रही है, पता नहीं कैब ड्राइवर सही है नहीं है, कई बार कंपनी की कैब मिलती है, कई बार नहीं, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। और मैं भी अंशुल सर से यही कह रही थी कि सर उसका वेट आधा हो गया है पहले से और मैं नहीं चाहती। सर मुझे कह रहे थे कि आप उसे खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन खैर जो भी है, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से मतलब जैसे स्ट्रगलिंग आती है लाइफ में, तो मैंने इसको इसलिए मना किया कि बेटा आप किसी और फील्ड में चले जाओ, CA इज़ वेरी टफ। बट नहीं मम्मा, उस दीदी कर रही हैं तो मेरे से भी हो जाएगा। और फिर आपके ही फैकल्टीज से पढ़े, निशान सर से भी, शी इज़ डूइंग मैथ्स। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you so much, ma'am. Thank you. It was very lovely. I would like to call Sneha Singh. एक क्विक चीज़ है। सो आपने अंशुल सर को देखा है, निशान सर को देखा है, स्वाति मैम, जतिन सर, जय सर, गौरव सर, आकाश सर। तो आप सबके साथ एक क्लास में मस्ती होती है, आप सबके साथ बहुत सारी आप अपनी बातें शेयर करते हो। एंड यू नो के सारे टीचर्स 2011 थोड़ा उससे पहले एंड काफ़ी टाइम से CA कर रखे हैं। एंड यू नो द ड्रिल, आपके टीचर्स कैसे हैं। बट टुडे वी हैव अवर बिलव्ड CFO सर, मिस्टर गौरव सोने सर, CA गौरव सोने सर, एंड आई वुड लाइक टू कॉल हिम टू सर। आप प्लीज़ थोड़ा सा एड्रेस करिए हमारे स्टूडेंट्स को। ऑल इंडिया रैंक 36, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। एंड सर अपने टाइम के CA स्ट्रक्चर के बारे में, जर्नी के बारे में बताएंगे सर प्लीज़। थैंक यू। ऑनेस्टली ऑल इंडिया रैंक बड़े सालों बाद अब मैं सुन रहा हूँ। आई थिंक उस दिन मेरिट लिस्ट में आया था, एक आध साल जोश रहा था, उसके बाद इट ऑल डाइट टर्न ओवर रियलिटी ऑफ लाइफ। सो आई डिड माई फाउंडेशन। सो मैंने अपने कॉलेज स्टार्ट करते 7वें फाउंडेशन दिया। फर्स्ट ईयर आई क्लियर्ड
my foundation also. Then I moved from regular college to correspondence. You know, once you clear, it's a very great feeling, you know. I would say never leave it. That's actually the reality. Once you've got into it, just complete it. So I have a family of chartered accountants. So my father is an old veteran chartered accountant, qualified in 1967 or 68. So me, my father, my brother, his wife, me, my wife, we all are chartered accountants. Unfortunately, my mother left alone as a doctor. So that's, but I think it happens in families. और बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे होंगे एंड बहुत सारे लोग हैं जो अभी फाउंडेशन करेंगे भी, जो एस्पेरेंट्स है अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए या उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए. तो गाइस सभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो सीए फाउंडेशन देने वाले हैं या सीए इंटरमीडिएट देने वाले हैं, उनको हम ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे. सो वी हैव द बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर देम एंड उसके लिए आई वुड लाइक टू कॉल अनिल सर, सौरभ सर, जतिन सर, अंशुल सर, प्लीज़ एक बार आप आइए एंड स्टूडेंट्स को बताया जाए व्हाट इज़ दैट बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर देम. सर, सुबह आपने अड्डा 24/7 की जर्नी शेयर की थी एंड आपने बताया था कि इट स्टार्टेड विद रेवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन. आपने एक वर्ड यूज़ किया था अफोर्डेबिलिटी, और आपने ये कहा था कि आप चाहते हो, आप दोनों का जो मिशन था वो ये था कि एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए. सो एकाग्रता अड्डा 24/7 हैज़ गॉट एन अमेजिंग अनाउंसमेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव पास CA फाउंडेशन इन January 25. And this announcement, Anil sir is going to make over here now. देखो अनाउंसमेंट ओके यहाँ पे आ गया है वैसे. ओके ठीक है. देखो एक बार मैं आऊँगा इस अनाउंसमेंट में, बट मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि यार दिस इज अ बिग डे फॉर अस एज ए कंपनी, एज फाउंडर ऑफ अड्डा 24/7. It's been about 6-7 months since we joined hands with Anshul and Ekagrata team, and now क्योंकि ultimately result is everything. तो आज पहली बार मैं CA के results देख रहा हूँ कि यार हाँ, now I can also proudly say कि यार हमारे यहाँ से CA intermediate के selections हुए हैं. Foundation तो of course है ही, and this is a big day for us. So हम discuss कर रहे थे कि यार big day है तो हमें कुछ करना चाहिए, और इन लाइन विद द सेम फिलॉसफी कि यार एजुकेशन को आप जितना अफोर्डेबल बना सको उतना अच्छा है. ऑफ कोर्स हम बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी कंपनी हैं, हमारे भी कॉस्ट हैं, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन इंटेंट यही रहता है कि यार कितना मिनिमम कर सकते हैं, कितना कम से कम कर सकते हैं. तो ये हमने कुछ फिगर आउट किया था कि यार अभी क्योंकि रिजल्ट्स भी आए हैं, एक बहुत अच्छा ओकेजन भी है, तो कुछ बच्चों को अच्छा तोहफा दिया जाए. So Ekagrata CA announces a flash sale for only 48 hours starting from 9th March 8 PM. जो भी लोग ये YouTube पे सेशन देखेंगे 9th March 8 PM to 11th March 8 PM. यहाँ कुछ टाइपिंग एरर हो गया. 9th March 8 PM से लेकर 11th March 8 PM तक CA Intermediate both group Mahapack Pro subscription, which is originally for 38,000, it will be now available only for 19,999 rupees. Sir, can you tell us कि ये महापैक प्रो एग्जैक्टली क्या है और उसमें क्या क्या मिलेगा? सो यस, महापैक प्रो मतलब यार एक ऐसा पैक है जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है. यू गेट लेटेस्ट लाइव लेक्चर्स अलॉन्ग विद ओल्ड, जो पुराने हमारे लेक्चर्स होंगे उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है. आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हो. मतलब इसमें आपको सब कुछ में इवेल्यूटेड टेस्ट सीरीज है, फैकल्टी सिलेक्शन का ऑप्शन है. मतलब यार यहाँ पर मतलब अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए, मेंटरशिप सेशन, हर चीज़ है. एक भी ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है जो हमने आज तक डिस्कस करी हो कि यार ये बच्चों को देनी है और वो महापैक प्रो के अंदर ना हो. हार्ड बुक्स, कलरफुल नोट्स, हर एक चीज इसके अंदर 100% कवर्ड है. सो बेसिकली आइडिया ये है कि जो बच्चे अभी CA फाउंडेशन पास हुए हैं, अब उन लोगों की इंटरमीडिएट की एग्जाम आएगी January 26 में, और इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. हमारी बैच चालू हो रही है 17 मार्च से. ये बैच रेगुलर बैच होगी. अब हम चाहते हैं कि बच्चों को एक रेगुलर बैच मिले जो अगले 6 महीनों तक चलेगा. मैं कल कुछ रैंकर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि सर रेगुलर बैच खत्म होने के बाद हमने रिवीजन्स के लिए आपकी फास्ट ट्रैक बैच यूज़ की, और वहाँ से हमें ये आइडिया आया कि यार ये बहुत अमेजिंग आइडिया है, क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए.
हम चाहते हैं हमारे बच्चों के रिजल्ट्स आए, वी वांट मोर एंड मोर ऑल इंडिया रैंकर्स। सो हमने कहा कि यार चलो फिर एक फास्ट ट्रैक बैच भी ऐड करते हैं। हमारे पास अगर मल्टीपल एजुकेटर्स है, लेट स्टूडेंट वॉच कंटेंट ऑफ एनी एजुकेटर विद अनलिमिटेड वॉच टाइम, with hard copies of books, evaluated test series, mentorship sessions, dedicated doubt solving, so many, every single thing included in Mahapack Pro at just 19,999. So 9th March शाम को 8 बजे से ये ऑफर स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 11th March रात को 8 बजे, 48 आवर्स फ्लैश सेल। सर यार अब ये तो हो गई बात उन बच्चों की जो अब इंटरमीडिएट में जा रहे हैं। What about those students जो CA फाउंडेशन करना चाहते हैं? सो सीए फाउंडेशंस जो एक सेकेंड, हाँ, तो सीए फाउंडेशन में भी यार ऑब्वियसली बात है यार, सिर्फ सीए इंटर वालों के लिए नहीं है। फाउंडेशन वाले जो अभी जो जिसे भी मतलब फाउंडेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। इसमें हम लोग लेके आ रहे हैं सीए फाउंडेशन महापैक प्रो। अगेन महापैक प्रो का जैसा हम लोगों ने इंटर में समझाया, हर चीज़ यहाँ पर आपके पास नए लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, आप ओल्ड लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, कोई फास्ट ट्रैक देखना चाहते हो, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्टेड। उसकी ऑफिशियल प्राइस है 14,000 रुपीज़ एंड वो आपको अगेन 9th मार्च 8 PM से लेकर 11 मार्च 8 PM तक ओनली एंड ओनली 14,000 की जगह मिलने वाला है 8,999। लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा, हमने जब इंटर बोला और फाउंडेशन बोला, इसमें हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स से लेकर हर चीज इंक्लूडेड है। सो यस सर, आई थिंक आप लोगों ने जो विजन से अड्डा 24/7 बनाया था, कहीं ना कहीं हम उसे पूरा कर रहे हैं। वी आर डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन और जो एकाग्रता और अड्डा का कॉम्बिनेशन है वो हमें दिखाई दे रहा है। सर हमने एकाग्रता जब बनाया था, हमारी पहली बैच आई थी 1 सितंबर 23 पे, जहां इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप विदाउट बुक्स का सब्सक्रिप्शन 27,000 रुपए का था। उसके बाद हमारी अगली बैच आई थी सर 20 फरवरी 2024 से, जिनके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, वहां पर इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन 38,000 का था एंड दैट गोज अप टू 42,000। और आज हम एकाग्रता और अड्डा 24/7 इसको लेकर आ रहे हैं सिर्फ 19,999 में अंडर द फ्लैश सेल ऑफ 48 आवर्स। देखो मैंने कुछ बच्चों के मैसेज देखे थे आपके वीडियो के पीछे लास्ट टाइम, ठीक है, ये मैसेज थे कि सर प्राइस थोड़ा और कम कर दो, थोड़ा और कम कर दो, बट जर्नी है, मतलब हम उस टाइम हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे भी कुछ चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों का प्यार मिल रहा है, वी आर एबल टू मेक इट मोर एंड मोर अफोर्डेबल। सो बच्चों जो लोग नहीं खरीद पाए थे, या आपका एग्ज़ाम है और आपको लग रहा है कि वैल्यू है एकाग्रता में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी हेल्प कर सकता है, उसके आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो हमने प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल आप लोगों के लिए कर दी है। आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है इस प्राइस को लेके ये। आई थिंक जो प्राइस पॉइंट्स होते हैं बहुत बार वो कुछ कैंडिडेट्स को एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा टीचर से मिलने का मौका उनका रह जाता है। तो आई बिलीव विथ दिस बिगेस्ट सेल एवर, आई थिंक ये एक मौका काफ़ी बच्चों तक पहुंचेगा वेयर दे विल बी एबल टू गेट एसोसिएटेड विद एकाग्रता टीम। एंड जिस तरीके के रिजल्ट्स इस बार आए हैं हमारे, इंक्लूडिंग AIRs एंड मोर देन 700 सिलेक्शंस। इनफैक्ट अभी हम जब बात कर रहे थे तो काफ़ी सब्जेक्ट लेवल टॉपर्स भी काफ़ी आए हैं हमारे। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा मौका है सारे बच्चों के लिए टू जॉइन दिस महापैक प्रो and come out with flying colors, so that next time when we are doing this event we all celebrate it together again, right? मैंने अंशुल को बोला है कि नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। ये अभी थोड़े से कुछ लोग नहीं है यहाँ पे, बट जब चल रहा था ये तो पूरा भरा हुआ था, तो मैं अंशुल को बोला था यार हाँ थोड़ा खड़े रहे, काफ़ी लोग खड़े थे। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग। देखो यार ये बैच है हमारा, और लेकिन इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हम यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट देते हैं। हम कमिटेड हैं आप लोगों की सक्सेस के लिए और उस पर काम करते रहेंगे। अगर आपको रियली वैल्यू लगती है तो प्लीज़ आप ये कंसिडर कीजिएगा, बट अगर कोई भी और चैलेंज है, कहाँ हम कहीं और हेल्प कर सकते हैं आपकी किसी और तरीके से, इवन इफ़ यू आर नॉट बाइंग आवर कोर्स, आप रीच आउट कीजिएगा हमें, है ना। हम कमिटेड हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि यार ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स खरीदोगे तभी आपको हेल्प करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रीच आउट कीजिए, हम लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, हर जगह है, हर तरह से वी विल हेल्प यू। इनफैक्ट अंशुल सर, स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट में भी मैंने कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि जितने से ज़्यादा बच्चों को हम हेल्प कर सकें। सो आई वुड वांट दैट वट एवर हेल्प, इवन इफ समबडी इज़ नॉट राइट नाउ एसोसिएटेड विद एकाग्रता बट is aspiring to get prepared for their upcoming interviews or maybe some sort of resume making for articleships,
I think we should help all the students, and we can circulate a form as well where they can fill their details and we can take it forward from there. तो बस यही है यार, जेन्युइनली हम लोग जेन्युइनली कमिटेड हैं. यू कैन टेस्ट दैट. आप रीच आउट कीजिए हमें, आपकी कोई प्रॉब्लम है बताइए. आपका सिलेक्शन हमारी सक्सेस है. मतलब आपका सिलेक्शन होगा वही हमारी सक्सेस है, वही हमारे लिए सब कुछ है. यस, तो लास्ट में एक और बार बताना चाहूंगा गाइस, सिर्फ 48 घंटे के लिए ये प्राइजिंग है ना. इस प्राइज में आज तक कभी महापैक प्रो मिला है ना इसके बाद कभी मिल पाएगा. तो आखिरी 48 घंटे, मतलब पहली बार और आखिरी बार ही हो रहा है वैसे तो. सो 8 बजे चालू हो जाएगा अपना, मतलब ऑब्वियसली बात है 9 मार्च को 8 बजे ये सेल चालू हो जाएगी और 11 मार्च को रात को 8 बजे तक सेल रहेगी. ये ऑफर में आपको नहीं मिलेगा. और आप सोच रहे हो बैच कब चालू होने वाली है, तो 17 मार्च से बैच चालू होने वाली है जीवन की, एंड 1 जुलाई से बैच चालू होने वाले G2 की. सी यू इन द बैच, बिकॉज होना ही है. चलिए मिलते हैं. AIR1. So I would like to call Shelly, Gaurav sir and Anshul sir to please felicitate Shelly. First of all, congratulations to everyone. So अभी मेरी story mostly, I don't know you have heard about it or not. So I took many attempts in my CA intermediate IPCC में. Then I cleared with rank 1. So I would like to share that what makes me keep going to this after so many failures is like मेरा idea था कि मेरे को clear करना है, because as Anil sir has said like about his story के छोटे से background से है, then he started this. तो उनके सामने भी वो था कि उनको एक ब्रेक करना है कि जो मेरा बैकग्राउंड है उसको ब्रेक करके मेरे को ऊपर लेके जाना है. सो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज लाइक दैट ओनली. सो आई स्टार्टेड. सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मेरे को ये छोड़ के, ऑप्शन थे छोड़ के तो कुछ और करने का, बट फिर अगर कुछ और ही करना है तो वाई नॉट CA. तो जब CA स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट तो मेरे को करना ही है. तो दैट वॉज द थिंग इन माई माइंड. आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मेरे को कंप्लीट ही करना है. ऐसा नहीं है कि मेरे को फेल हो रही हूँ तो मैं रुक जाऊँगी या कुछ हो जाएगा. सो आई मूव विद दैट एटीट्यूड. अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो मैं क्या करती, तो डिफरेंटली कुछ उसमें करेंगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा. सो अपना CA के लिए लाइक अभी आप लोग फाइनल का करोगे, सो योर आर्टिकलशिप, जैसे सर ने बोला कि डमी आर्टिकलशिप, सो आई वुड ऑल्सो एग्री विद सर कि कभी भी डमी आर्टिकलशिप में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड योर एकेडमिक्स इज अ सेपरेट थिंग, बट एट द एंड आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वो काम करोगे. सो अगर आपको वो प्रैक्टिकली नॉलेज ही नहीं होगा, आप इवन इफ आप CA बन जाओगे बट जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ काम नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप फिर फंस जाओगे. देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने CA क्यों किया, मेरे को तो CA करके बाद भी जॉब नहीं मिल रही है. तो इसलिए अपनी आर्टिकलशिप भी करो और पढ़ाई भी अच्छे से करो. सो इट्स जस्ट लाइक अमन सेट के बैलेंस होता है उसमें. हम CA इज सम कोर्स के जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बैलेंस आप यहीं से करना सीखोगे कि आप आर्टिकलशिप के साथ साथ अपना पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे हो. सो आर्टिकलशिप के लिए बिकॉज अब आप लोग एनरोल करोगे तो इसलिए डू, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल फर्म बिग फर्म डजेंट मैटर, बट डोंट गो फॉर द डमी आर्टिकलशिप. एंड फॉर स्टडी जस्ट फोकस, स्टार्ट विद योर स्टडीज एंड लाइक प्रिपरेशन एंड डू सम प्रैक्टिस ऑल्सो लाइक mock test papers and all. So that helps you. So basically practice is the main key that I followed in my CA, IPCC and final also. Yep. All the best, everyone. Thank you. Soon we will meet Thank you, for your Shelly. CA final. Felicitations. Thank you so much, Shelly. Thank you. I would like to call Nishant sir, Swati ma'am to please felicitate Muskan Rajput. Thank you, Muskan. I would like to call Rahul Bajaj. I would like Akash sir, please join to felicitate the further students. I would like to call Ashish Kumar Mishra. Congratulations, Ashish. Please come on the stage. Next, I would like to call Dhruvi Agarwal to please come on the stage. Congratulations, Dhruvi. Congratulations, Dhruvi. Now, I would like to call Dhruv Mehra. Congratulations, Dhruv. Please come on the stage. Next, I would like to call Hari Yom. I would really like Jatin sir to join the team on stage. आप सर ऐसे बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा मैं. Okay. Next is
Kushal Somani. वो डेफिनेटली वी हैव अ लास्ट में डीजे विद ऑल द टीचर्स. आज सारे टीचर्स नाचेंगे आपके साथ, तो वो पार्ट तो मिस नहीं कर सकते आप लोग. नेक्स्ट वी हैव राहुल मजुमदार. Congratulations, Rahul. Now I would like to call Namandeep Kaur. Next I would like to call Shlok Gupta. Congratulations, Shlok. Next we have Arav Bhatnagar. Congratulations, Arav. Next I would like to call Ramandeep Singh. Next we have Anu. I would like to call Jayesh sir now. Next we have Anushka Sharma. Anushka, Jayesh sir, Swati ma'am, तीनों जोधपुर से है, तीनों एक ही सिटी से है. And Anushka is CA finalist now. इसने फाउंडेशन इंटरमीडिएट सारी चीज़ें जयेश सर से ही पढ़ी है. So congratulations Anushka and all the best for CA final. Next we have Imran. Congratulations Imran. And the last candidate we have Shivansh Shukla. AIR भूमिका गोयल. तो उनके जो ब्रदर है वंशित गोयल, ही इज ऑल्सो हियर. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वंशित. वंशित इज आवर एक्स स्टूडेंट एज वेल एज काफ़ी वंशित ने एकाग्रता से पढ़ाई करी, सर से पढ़ाई. अंशुल सर प्लीज़ एक बार आप अगर वंशित को फेलिसिटेट करेंगे. स्वाति मैम, निशांत सर. कंग्रेट्स वंशित. We are very happy to share this fact that Vanshit has studied CA Foundation, CA Intermediate both from us. He is now going to give CA final exam in May 2025. अब आप एक बार इमेजिन कीजिए, बड़ा भाई वो CA कर रहा है और उसकी छोटी बहन हमसे ही पढ़ती है और ऑल इंडिया रैंक लेके आ रही. वंशित, हाउ इट फील्स? सर बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है हमारे लिए, एंड स्पेशली AIR आना और उन टीचर्स ने पढ़ाया है जिनसे मैं पढ़ा हूँ. I still remember that day. It was. भाई तेरी और सिस्टर की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. उन टीचर से पढ़ना जिनसे मैं पढ़ा हूँ, हम भी मतलब वही एज के हैं. हाँ, साल डेढ़ साल ही पढ़े हुए हैं. नहीं मतलब फिर भी होता है, एक फीलिंग होती है ना कि वही तो टीचर बोल रहा है यार ये तो. नहीं वैसा नहीं. नहीं एक्चुअली द थिंग इज कि भूमिका हम लोगों से ज़्यादा वंशित से पढ़ी है, तो वो ना इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है. बट सर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट है. हमारी तो फैमिली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम AIR भी आएगा, और वैसे भी वो एक स्मॉल शहर से हम सारे, तो वहाँ AIR आना आई डोंट फील कि कभी हमारे सिटी बटाला में कभी AIR आया है. एंड आज वो AIR आया है एंड हमारे सारे रिलेटिव बहुत प्राउड हैं कि शी हैज़ डिड दैट. सो अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ गया? CA फाइनल अगले महीने है. नहीं सर, मेरा एक्चुअली AIR के लिए कोई एम नहीं है. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, मतलब मुझे हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना है. मेरा AIR का एम नहीं है, इसलिए आई डोंट. वंशित एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त बोली आपने, रिश्तेदारों को बहुत प्राउड हुआ. मतलब रेयर होता है ना ये. हाँ, सभी को नहीं होता है बट कईयों को होता है. यार मैं और निशांत सर रिकॉल करते हैं यार, वंशित को हमने CA फाउंडेशन में पढ़ाया था. He was a very disciplined boy. What do you think? Yes, absolutely. हर क्लास बहुत ईमानदारी से अटेंड करता था, लाइव क्लासेस देखता था. फिर वो इंटरमीडिएट में आया, इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. बटाला बहुत छोटी जगह है पंजाब में, वहाँ से वो आर्टिकलशिप करने गया PWC मुंबई में. एंड इतना कनेक्टेड, आई कांट टेल यू, इतना कनेक्टेड कि एवरी मॉर्निंग शायद सूरज निकलना भूल सकता है बट वंशित का गुड मॉर्निंग ना ये पॉसिबल ही नहीं है. एंड दैट लेवल ऑफ कनेक्ट. फिर बाद में सर मुझसे नहीं हो रही मुंबई की लाइफ, मैं वापस जा रहा हूँ बटाला. एंड यू बिलीव PWC की आर्टिकलशिप छोड़ के ये बंदा वापस आता है अपने होम टाउन में बटाला में टू डू आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मिड. भाई क्या कारण क्या रहा होगा उसका? सर एक्चुअली मुझे जॉब नहीं करनी है,
मुझे हमारा फैमिली बिजनेस ही आगे कंटिन्यू करना है। सो आई वांट कि मुझे ऐसा एक्सपोजर मिले जहाँ पे मैं जिस एनवायरनमेंट में आपको काम करना है मुझे MNCs भी देखनी थी कि वो कैसे वर्कआउट करती हैं, प्लस मुझे मिड साइज का भी वर्क चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस के को भी बट आई थिंक ये तो सबको बताने का रीजन हो गया ना, बाकी भी तो रीजन हो सकते हैं घर पे वापस आने के, गांव में वापस आने के। कॉन्फिडेंशियल है, अमेजिंग यार। सो गाइज यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारे लेवल पे वी फील सो प्राउड कि हमारे स्टूडेंट्स, उनके भाई बहन अब CA कर रहे हैं और CA बन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंचित। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो मैंने कहा था एक सरप्राइज है, तो क्यों ना वो सरप्राइज के साथ में चला जाए। एंड सब लोग तैयार हैं, एक्साइटेड हैं? चलो तो निशांत सर को बुलाते हैं एंड निशांत सर को बोलते हैं सर थोड़ा सा एक सॉन्ग हो जाए सब स्टूडेंट्स के लिए। आर यू ऑल एक्साइटेड? नाउ आपकी नई जर्नी के लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, थ्रू आउट द सॉन्ग ताली नहीं रुकनी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मजा आ रहा है गाइस? अगला वाला सब साथ में गाएंगे। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमानों में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। क्या बात है मैडम। अंशुल सर का किसी ने सॉन्ग सुना है जो CA के लिए है? सर अगर गा नहीं सकते, लेकिन हम सर के लिए वो सॉन्ग प्ले जरूर कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू रेडी? सब लोग साथ में गाएंगे पक्का? फुल ऑफ एनर्जी, खड़े होके गाएंगे, उसके बाद में होगा DJ। सब रेडी हैं? ओके। साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। अकाउंट्स और टैक्स मेरे दोस्तों के नाम, साले सब एक जैसे, कोई आता नहीं काम। अगर मैं नहीं पढ़ा तो लाइफ होगी आम, CA करके बनना है माँ बाप की शान। बढ़ना आगे करना काम, मुझे जीना नहीं था आम। थोड़ा गुस्सा थोड़ा शांत, थोड़ा खुद को मैंने जाना, थोड़ा खुद पर किया काम। थोड़ी शिक्षा थोड़ा ज्ञान, लेकर माँ बाप का नाम चल दिया देने में भी फाइनल एग्जाम। तेरी मुश्किलों में मैं न मुंह मोड़ूंगा, तुझे रास्ते में नहीं सौंपूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। तू बस चलते रह, तू आगे बढ़ते रह, तू बस चलते रह, तू आगे बढ़ते रह। मैं तेरी मुश्किलों का रुख मोड़ूंगा।
डेफिनेटली सारे बच्चे वेट कर रहे हैं सारे टीचर्स के साथ डांस करने के लिए। हम एक डीजे सेशन करेंगे, उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे इस इवेंट के लिए। एकदम जिंगाट पंजाबी, सारे पंजाबी, फुल डीजे। Hooray!